introduction, means a brief revision of hypothesis testing. So what is hypothesis testing? Normally in statistics or in any sample, in any population, whatever estimate we do, or before taking any decision, what we actually do is that we start with a basic assumption. Now what is this basic assumption? We will assume that, suppose, let's say for an example, I assume that the price of one stock, let's say price of stock X is going to increase, right? So this is my assumption. I state, means whenever in managerial decision, see, in management decision, whenever we are going to take any decision, that time we start with an assumption. Normally I cannot take any decisions in a vague way, right? There has to be some base for taking any decision. So we say that one assumption, I take one assumption. So this assumption that I took for taking my decision, this assumption is called hypothesis in statistics, right? Now whether my assumption or my hypothesis that I took for taking any decision, like I'm willing to invest, suppose if I'm an investor, I'm taking an example, I am an investor, right? Now I'm willing to invest in the willing to invest in stock X, right? Stock X, company stock X. So now if I'm willing to invest in stock X, definitely there's some assumption regarding it. Yes, why will I invest into it? So I assume that price of stock X is going to increase, right? The first thing, the first assumption is that I will think that price of X is going to, price of stock X is going to increase. Now I need to check this hypothesis. There has to be some testing of this hypothesis, whether my assumption, my basic assumption is correct or incorrect. Fine, I need to check it, because without checking and verifying, I don't think that I will be able to take any decision. Fine. So in order to test that hypothesis, what is the procedure? Now what is the procedure of taking this, testing this hypothesis? So this chapter is all about testing of hypothesis. Fine. I hope I'm going right. So now, while testing this hypothesis, there are normally we come across with different types of errors. There are type 1 and type errors. Is written in this way. Type 2 errors. Now what is type 1 error? Type 1 error. Type 1 error is that when we reject, when suppose when we are accepting a right decision, normally what can be the correct decision? Accept the correct decision. This is right. ये तो राइट ही होगा ना, अगर मैं कोई करेक्ट डिसीजन को लेके चल रहा हूँ, एक्सेप्टिंग द करेक्ट डिसीजन, दिस इज राइट, देयर इज नो एरर. नाउ if I am accepting a wrong decision, suppose I am accepting a wrong decision, then what will happen? This is wrong, right? So now this type of error is called type 1 error. When I am accepting a wrong decision, मैंने कुछ गलत स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले लिया, so accepting a wrong decision, right? उसको मैंने ले लिया. Now suppose you accept a wrong decision. wrong decision को यहाँ पे क्या मैंने किया? सॉरी, ये हो गया टाइप 2 एरर, ठीक है, ये टाइप 2 है. रियांसी जाओ ना बेटा, इतना डिस्टर्ब कर रही है, जाओ ना ऊपर. अरे इसको यहाँ पे छोड़ के चले जा रहे हैं, मैं पढ़ाऊं कैसे? पूरा दिन ही ऐसे ही करेगी, तो उसको भगाइए ना पूरा. एकदम बात नहीं सुनती है ये. और एकदम बात नहीं सुनती है ना, एकदम पूरा दिमाग खराब करके रखेगी.
rejecting the correct decision. Rejecting the correct decision is wrong. मैंने एक सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को छोड़ दिया. सपोज आई रिजेक्टेड द करेक्ट डिसीजन. मैंने कोई करेक्ट डिसीजन को छोड़ दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? टाइप 1 एरर. ठीक है, उसको बोलते हैं टाइप 1 एरर. नाउ अब मैंने और एक गलती क्या की, नेक्स्ट वाले में हमारा करना क्या था, नेक्स्ट होना क्या चाहिए था, मेरा जो रॉन्ग डिसीजन है उसको मुझे रिजेक्ट करना चाहिए. मुझे करना क्या चाहिए? रिजेक्टिंग द रॉन्ग डिसीजन. ये होता मेरे लिए राइट. बट मैंने क्या किया? मैंने किया एक्सेप्टिंग अ रॉन्ग डिसीजन. तो दिस इज रॉन्ग. तो ये हो गया टाइप 2 एरर. देखो ये दो एरर देखो. नॉर्मली हमारे जो डिसीजंस होते हैं, अवर डिसीजंस आर प्रोन टू एरर्स. हमारे जो डिसीजंस, क्योंकि हमने एजम्पशंस पे सारे डिसीजंस लिए हैं. जब भी हम कोई डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं, दिस डिसीजंस कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग. कोई भी मैनेजमेंट डिसीजंस ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे हैं, आप कोई भी फर्दर आप कुछ किसी भी तरह का डिसीजंस ले सकते हैं. तो हम पहले स्टार्ट करते हैं विद अ बेसिक अजम्पशन. हमारा एक अजम्पशन जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस. मैं बहुत ब्रीफ में पढ़ा रही हूँ, बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ा रही हूँ. ठीक है. नाउ अब यहाँ पर देखिए, ये रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू. अब देखो, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, दो हाइपोथेसिस जो होता है ना, इसको हम लोग स्टैटिस्टिकल टर्म में, ये जो मैंने बेसिक एग्जांपल आप लोग को समझाया है, बहुत आसान भाषा में समझाया है, इसमें हाइपोथेसिस को हम लोग दो तरीके से दिखाते हैं. हाइपोथेसिस को जो एक्सप्लेन करते हैं, इसका दो होता है. एक होता है नल हाइपोथेसिस, मतलब ये मान के चल रहे हैं जो हमने सोचा है H0, या नल हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस. और इससे हम लोग स्टार्ट करते. तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्स में इन्वेस्टमेंट करना सही है. सो दिस इज नल हाइपोथेसिस. ठीक है, ये सही है. इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज H0. ठीक है. अब नाउ इसका एक ऑल्टरनेटिव होता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज H1. तो ये इसका मतलब ही हुआ कि, और जो मतलब H0 जो है, ऐसा हम मान के चलते हैं H0 इज इक्वल्स टू 1, या H0 इज इक्वल्स टू ट्रू, कुछ भी मान सकते हैं. तो ये मैं मान के चल सकती हूँ H1 इज लेस देन 1, H1 इज ग्रेटर देन 1. तो कुछ भी ऑल्टरनेटिव होगा. नल मतलब एकदम जो एजम्पशन लिया वो सही है, इक्वल है. और ऑल्टरनेटिव मतलब वो ऑल्टरनेटिव है, उसका कुछ अलग है. अब हम बात कर रहे हैं टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स की. व्हेन वी गो अहेड विद सर्टेन डिसीजन, देयर कुड बी डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स. मेरे कुछ एरर्स हो सकते हैं. जैसे बोला रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, इट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर. इट इज डिनोटेड एज ग्रीक लेटर अल्फा. अभी जो टाइप 1 एरर्स है ना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. जस्ट अ मिनट, इसका इमेज मुझे कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास नहीं है ये. अच्छा, अभी तक क्लियर हो रहा है? कौस्तवी तुम्हारा तो क्लियर है, बट ऋतुपर्णा, ऋतुपर्णा क्लियर हो रहा है तुम्हारा? प्लीज अनम्यूट करके बोलो. हाँ मैडम. अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं ज्यादा जल्दी नहीं जा रही हूँ ना? ना ना ना. ठीक है. कौस्तवी তোমার তো এটা করাই আছে, তো কোনো অসুবিধা কিছু নেই. ओके. तो टाइप 1 एरर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज दिस अल्फा. मैं यहाँ लिख दे रही हूँ छोटा सा करके. ठीक है, ऐसे, और भी छोटा कर दे रही हूँ. और बीटा, बीटा को हम लोग ऐसे दिखाते हैं. ठीक है, क्लियर है? नाउ टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर समझ में आ गया कि भाई एक सही डिसीजन, एक करेक्ट डिसीजन को रिजेक्ट करना, और एक रॉन्ग हेलो बोल. शाम को तो मेरा तो क्लास शेड्यूल है. अच्छा ठीक है, वो आके क्लास रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं. ठीक है ठीक है, आप उसको भेज दीजिए. ठीक है.
चलो, तो यहाँ पर दो चीज हो रहा है, रिजेक्टिंग द करेक्ट डिसीजन एंड एक्सेप्टिंग अ रॉन्ग डिसीजन, ये दो तरह का एरर्स होता है, ठीक है। नाउ अब हम लोग जो टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये इसको किस तरीके से करेंगे हम लोग, दो तरह का टेस्ट होता है, एक होता है टू टेल टेस्ट, एक होता है वन टेल टेस्ट, ठीक है। तो हम लोग ये जो टेल टेस्ट है उसको कैसे करते हैं, देखो इसको नॉर्मली हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारा इस तरीके का होता है, ठीक है। ये तो तुम लोग देखे होगे डिफरेंट तरीके का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, कुछ दिख रहा है सिमेट्रिकल, ये देखो मीन मीडियन मोड यहाँ पर है, देखो उसको सिमेट्रिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड में जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रहेगा ना, दोनों साइड में बराबर रहता है। मैं इसको यहाँ से ले रही हूँ, वन टेल्ड टेस्ट, let me get some proper diagram, छोड़ो मैं बना लेती हूँ, इतना माथा पच्ची करने से अच्छा है। देखो ये टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट क्या होता है, पहले हम एक कर्व बना रहे हैं, नॉर्मली हमारा जो मीन होता है, मीन वैल्यू हमारा ऑब्जर्वेशन जो होता है, मीन वैल्यू हम लोग यहाँ दिखाते हैं, तो इसको हम लोग मीन जो है उसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, ऐसे इसको म्यू टाइप का रिप्रेजेंट करते हैं, तो मीन मीन, और इसको H0 जो है दिस इज नल हाइपोथेसिस, तो हम मान के चल रहे हैं ये नल हाइपोथेसिस का मीन है, मीन वैल्यू, तो इससे हमारा जो एक लाइन जाएगा ऐसे स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा कर्व है, ये सपोज, सॉरी मेरा कर्व ऐसे उठना चाहिए प्रॉपर, ऐसे, ठीक है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर तुम लोग समझ जाओ, ओके। नाउ अब हमारा जो टेस्ट होता है, ये देखो ये हमारा एक क्रिटिकल रीजन होता है यहाँ तक, ये हमारा क्रिटिकल रीजन है। अब देखो हमारा जो है सैंपल, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, अब एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे एक कोई प्रिंटिंग डिपार्टमेंट है, वो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड है उसको एग्जैक्टली 100 नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंट करनी है, एग्जैक्टली 100, मतलब तो मैं उसको मान के चल रही हूँ दिस इज माई 100, रेंज इज 100, एग्जैक्टली 100 कॉपीज उसको बनानी है इन अ डे। If the printer prints more than that number, then the head of the department finds that the cost of the prints will increase significantly. अब इसको क्या लग रहा है, अगर 100 से ज़्यादा प्रिंट हो रही है तो कॉस्ट इज इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली, while if the number of prints is less than 100, then the department's work will get hampered. मतलब 100 से ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, इसलिए मतलब वो मान के चले एकदम 100 ही होना चाहिए, ठीक है। Then in order to see the printer is printing exactly 100 copies, the head of department takes a sample output to test hypothesis. That is H0, that is null hypothesis. Mean is equals to 100. तो मैंने यहाँ पर mean की value दिखाई है, null hypothesis का mean value is equals to 100. Because he does not want to deviate significantly from either direction. उसको दोनों direction से ही ना ज़्यादा ना कम, मतलब ये मेरा क्रिटिकल रीजन है, इसके बाहर भी नहीं जाना चाहिए, इसके कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखो सैंपल मीन जो है वो इस रीजन में, इस रीजन में ही उसको प्रिंटिंग करनी है, ये 100 का रीजन है ये, ठीक है, इसमें ही प्रिंटिंग करनी है। अगर मेरा इधर आ जाता है इस रेंज के बाहर या इस रेंज के बाहर, तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, वी कैन नॉट प्रोसीड। If the sample mean falls in this region, we would reject the null hypothesis. देखो क्योंकि अगर sample mean मेरा इधर बाहर आ रहा है,
मेरा रेंज जो है वो 100 का रेंज है यहाँ से यहाँ तक। मेरा अगर सैंपल मीन इधर बाहर की तरफ है, ये जो ऐसे नीचे से निकला हुआ है ना ऐसे करके, इसको हम लोग बोल रहे हैं टेल, राइट टेल, सॉरी दिस इज राइट टेल एंड दिस इज लेफ्ट टेल। राइट टेल प्लस की तरफ जाता है, लेफ्ट टेल माइनस की तरफ जाता है। ये टेल, राइट टेल टेस्ट और लेफ्ट टेल टेस्ट इसी को बोलता है, राइट टेल्ड एंड लेफ्ट टेल्ड। ठीक है, अभी हम लोग एक दो सम्स करेंगे तो समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, इसको हटा दूं ना। द क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन, अच्छा बिफोर आई से दी क्वेश्चन, फर्स्ट आप लोग ये इसका जो प्रोसेस है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हम किस तरीके से करेंगे पहले हम उसको लिख लेते हैं, मीन्स हाउ टू गो अहेड विद दिस टेस्टिंग प्रोसेस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ मीन ऑफ लार्ज सैंपल। देखो सैंपल साइज जो है, पॉपुलेशन एक होता है, पॉपुलेशन एक होता है सैंपल। पॉपुलेशन मतलब क्या है, ओवरऑल जो हमारा एक बड़ा, जैसे ये मेरा पॉपुलेशन है, इतना सारा डेटा है, इतने सारे डेटा का जो बच्चा, मैं एक एक तो सैंपल ले लेती हूँ। अब ये सैंपल विल रिप्रेजेंट दिस पॉपुलेशन, क्योंकि मैं पूरे 2000 लोगों को इंक्वायर नहीं कर सकती, पूरे 2000 से मैं क्वेश्चन नहीं पूछ सकती, तो मैं क्या करती हूँ, सैंपल चूज कर लेती हूँ। देखो क्वालिटी चेक अगर होता है तो एक एक प्रोडक्ट को चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, सैंपल चेकिंग करते हैं। तो अब अगर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ मीन ऑफ लार्ज सैंपल, इफ द सैंपल इज लार्ज, लार्ज साइज मतलब मोर देन 30, तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटिंग द नल हाइपोथेसिस। फर्स्ट हमको हाइपोथेसिस को मेंशन करना पड़ेगा कि मेरा बेसिक असम्पशन क्या है। H0, उस H0 को मेंशन करना पड़ेगा कि भाई मैं मान के चल रही हूँ इसकी प्राइस बढ़ेगी, इसकी प्राइस घटेगी, कुछ भी मान सकते हैं हम। नाउ कंप्यूटिंग द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, प्रोसेस इज कंप्यूटिंग द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है उसका फॉर्मूला है हम लोग का, उसका मैं देख लेती हूँ, फॉर्मूला मैं कॉपी कर लेती हूँ। बोलो। फुटबॉल से खेल सकते हैं? नहीं अभी नहीं खेलना उससे। क्या, प्लीज मम्मा, जाओ खेलो। ये हम डॉल से खेलेंगे। हाँ, उसके बाद हमको पता है कितने दिन वो डॉल रहेगा। अच्छा हम रख देंगे। जाओ 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 ना, तब क्यों माथा पे सवार है मेरा। देखो में ड्राइंग करेंगे, मारेंगे एक थप्पड़ यहाँ से, जाओ भाग यहाँ से। देखो Z टेस्ट का स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूला क्या है, Z टेस्ट इज इक्वल्स टू x बार, इस x बार जो ऊपर में दिख रहा है दैट इज सैंपल मीन। ठीक है, और ये जो म्यू का फॉर्मूला है x बार माइनस म्यू, म्यू मतलब है पॉपुलेशन मीन, और ये नीचे जो है दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन बाई रूट n। ठीक है, इसको एक्चुअली सैंपल एरर भी बोलते हैं हम लोग, ये जो फॉर्मूला है ना इसको हम लोग सैंपल एरर का फॉर्मूला भी बोलते हैं, फॉर्मूला इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल। तो ये थर्ड स्टेप हमारा हो गया टू चेक। थर्ड नंबर अब कैसे जाऊं मैं, नंबर थर्ड स्टेज, डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। देखो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया रहता है कि हम हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब एक्चुअली क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलता है कि हमारे कितने परसेंटेज चांस है कि हम सही डिसीजंस को नहीं लें, उसको बोलता है सिग्निफिकेंस लेवल। So it is assuming the null hypothesis is correct and the probability of rejecting the null hypothesis when it is true. तो level of significance indicate करता है कि कितने chances हैं कि आप सही चीज को छोड़ दो। जैसे होता है ना 2% चांस है, 0.2%, 0.5%, उसको बोलता है level of significance। ठीक है, now computing the critical वैल्यू। अब हम क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। ये क्रिटिकल वैल्यू जो है बाय टेस्टिंग द वैल्यू ऑफ z एट प्री डिटरमाइन लेवल, तो ये हम कहाँ से निकालेंगे, एट द प्री डिटरमाइन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो क्रिटिकल वैल्यू हम लोग सिंपल सी बात है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में है कुछ दिया हुआ है प्री डिटरमाइंड वैल्यू, वहां से निकाल लेंगे, वो मैं दे दूंगी आप लोग के एग्जाम में, जितना आएगा वो मैं दे दूंगी. Now comparing the value of test statistic Z with critical value. Now comparing the value of test statistics Z with critical value to arrive at a decision. तो हमको उसके हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा. ठीक है, मतलब पहले हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस क्या है वो देखेंगे, फिर हम कंप्यूट करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक, मतलब अपने जेड टेस्ट का फॉर्मूला. ठीक है, अब हम अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखेंगे, वहां से उस टेबल का वैल्यू निकालेंगे. ये बहुत इजी है, एक तो सम्स करो तो समझ में आ जाएगा. पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये टेबल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टेबल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो एग्जाम में आने वाला है वो मैं बता दे रही हूँ. क्रिटिकल वैल्यूज ये आपका है जेड अल्फा का वैल्यू कहाँ से लाऊं, इमेज कॉपी करने में बहुत दिमाग खराब हो रहा है, नहीं हो रहा है. छोटा गोली मारो, तुम लोग समझ लेना. क्रिटिकल वैल्यू जेड का, जेड अल्फा. ठीक है, एंड दिस इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब ये हर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अलग अलग और टेस्ट के हिसाब से अलग अलग वैल्यू हैं. जैसे ये हुआ टू टेल्ड टेस्ट. ओके, अब हुआ राइट टेल्ड टेस्ट एंड लेफ्ट टेल्ड टेस्ट, मैंने पूछी. अब इसमें देखो ये दिया है एट 1%, 1% सिग्निफिकेंस लेवल में, 2% सिग्निफिकेंस में, 4% में, 5% में एंड 10% में. ये डिफरेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ, एग्जाम में यहीं से आता है. ठीक है, तो ये आपका होगा प्लस माइनस 2.56. अच्छा, मैं ना सिर्फ परसेंटेज लिख रही हूँ, इसको समझ लेना है प्लस माइनस दोनों है, क्योंकि अभी जो हमने ये कर्व देखा, तो ये कर्व में क्या देखा, दोनों तरफ होगा ना. जब हम टेस्ट करेंगे तो ये प्लस के तरफ भी है, जब मेरा मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू सब इस तरफ से जब जा रहा है, इस तरफ आगे की तरफ, तो वो प्लस हो रहा है, और पीछे की तरफ जा रहा है तो माइनस हो रहा है. तो बोथ वे इट इज पॉसिबल, प्लस और माइनस दोनों होगा. तो प्लस माइनस 2.56. सेकेंड है 2.326, प्लस माइनस 2.326. 4% में 2.054. ये वैल्यू याद कर लेना, या तो फिर कुछ भी कर लेना एग्जाम के लिए. 1.645. राइट टेल टेस्ट अगर होगा 2.326, 2.054, 1.751, 1.645, 1.282. लेफ्ट टेल में है ओनली माइनस, लेफ्ट टेल में, अच्छा राइट टेल में, सॉरी, अच्छा टू टेल्ड में है प्लस माइनस दोनों, मैं इसको लिख दे रही हूँ प्लस एंड माइनस. ठीक है, राइट टेल्ड में है ओनली प्लस सब में. ठीक है, और लेफ्ट टेल्ड में है माइनस, ओनली माइनस. 2.326, 2.054, 1.751, 1.645 एंड 1.282. देखो राइट टेल्ड सामने की तरफ जा रहा है इसलिए उसको प्लस बोल रहे हैं, लेफ्ट टेल्ड माइनस के पीछे की तरफ जा रहा है इसलिए माइनस बोल रहे हैं. तो ये हमारा क्रिटिकल वैल्यू जेड का हमको मिल गया. ठीक है, सम्स करने में इजी होती जाएगी. अब हम सम्स ले रहे हैं. कहाँ गया क्वेश्चन, बताओ. A tire company
wants to test the stress of tires. ठीक है, the tires should withstand a minimum load of 80,000 kgs. Okay, but excess load would burst the tire. From the past experience, it is known that the standard deviation, SD, is equals to 4,000 kgs. ठीक है, उसके बाद sample of 100 tires was selected and tests were carried on them. Tests were carried on the test results showed that the mean stress capacity of the sample is 79,600 kgs. ठीक है, if the supplier uses a significance level of 0.05 in testing, do tires meet stress requirement? क्वेश्चन को एक बार पढ़िए आप लोग. क्वेश्चन को पढ़ो. समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन? देखो, इस पूरे इंटायर जो थिंग है, इंटायर चीज को वंस वी डिड इट, उसके बाद मैं इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर सकती हूँ. ये देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, अ टायर कंपनी wants to test the stress of the tires. मतलब टायर की कैपेसिटी क्या है. The tire should withstand a minimum load of 80,000 kgs. टायर का मिनिमम जो कैपेसिटी है वो कितना होना चाहिए, मतलब मिनिमम जो वो लोड ले सके, दैट इज 80,000 kgs. ठीक है, ये दिया हुआ है हम लोग का स्टैंडर्ड. But excess load would burst the tires. From the past experience, it is known that the standard deviation is equals to 4,000 kgs. A sample of 100 tires, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन हमको मिल गया है. स्टैंडर्ड डिविएशन 4,000 kgs है. ठीक है, sample of 100 tires were selected and tests were carried on them. 100 टायर्स को सिलेक्ट किया गया और टेस्ट were carried on them. The test results showed that the mean stress capacity of the sample is 79,600 kgs. If the supplier जो है वो significance level use कर रहा है 0.05 in testing, to tires meet stress requirement. ये जो tires हैं whether they meet the stress requirement or not, ये हमको देखना है. ठीक है, अब इसमें हमको एक
चीज मिली हुई है, एक चीज हमको पता है क्या है, दैट इज 5% इज द सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल कितना है? 5%। 5% सिग्निफिकेंस लेवल है। मीन वैल्यू है 8%। कितना है? कितना हमारा मीन वैल्यू है इज 80,000। मीन वैल्यू है 80,000। ठीक है। नाउ अब इसको देखिए, इसको हम लोग कैसे करेंगे। हमने अभी प्रोसेस को देखा था। व्हाट वाज द प्रोसेस? फर्स्ट देखिए, फर्स्ट यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड में इधर करके दिखा रही हूँ, इट वुड बी इजियर फॉर मी टू डू। मैं सोल्यूशन तो यहाँ कर रही हूँ। मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 4,000 दिया हुआ है ना। मीन वैल्यू इज इक्वल्स टू 79,600। स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है, मीन वैल्यू दी हुई है। नाउ नल हाइपोथेसिस क्या है मेरा? H0 मेरा क्या होना चाहिए? कैपेसिटी 80,000। एक टायर की कैपेसिटी होनी चाहिए 80,000 kgs को लेने की, पर मीन वैल्यू आ रहा है 79,600। n इज इक्वल्स टू 100। ये भी डेटा है हमारे पास, सैंपल जो हमने देखा है 100 दिया हुआ। तो नाउ नल हाइपोथेसिस जो है, तो मेरा नल हाइपोथेसिस है वो क्या है? हम लोग पहले जो स्टार्ट करें तो नल हाइपोथेसिस इज H0 इज इक्वल्स टू मीन इज इक्वल्स टू 80,000। हम मान के चल रहे हैं जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वही मेरा नल हाइपोथेसिस होगा। तो दिस इज माय स्टैंडर्ड। मेरा स्टैंडर्ड जो प्रेस्क्राइब्ड है, मेरा जो स्टैंडर्ड है सप्लायर के लिए कि मेरा जो टायर है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए 80,000। ठीक है, तो दिस इज माय स्टैंडर्ड। तो मेरा अजम्पशन जो नल हाइपोथेसिस है H0 इज इक्वल्स टू मीन इज इक्वल्स टू 80,000, तो मेरा अजम्पशन वहीं से शुरू होगा, मैं वही मान के चल रही हूँ। And H1, this is my alternative thesis, is mu, that is my mean is not equals to 80,000. This is my alternative thesis. Fine. Now अब इसके बाद हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल। सबसे पहले हम जो फॉर्मूला निकालते हैं दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन x बार, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मीन। तो हम लोग उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल, क्योंकि ये तो सैंपल का ही मीन है ना, सैंपल का ही मीन वैल्यू है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल हम उसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन बाई रूट ओवर n। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमको दिया हुआ है 4,000 डिवाइडेड बाई n is 100. So we got value is equals to 400. 10 हो गया, तो 10 से 4,000 इज इक्वल्स टू 400 kg। 400 kg। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमको क्या करना है। हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल निकाला, फॉर्मूला में देखो कंप्यूटिंग द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, हम लोग Z टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालना। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को सिग्निफिकेंस लेवल दिया हुआ है। सिग्निफिकेंस लेवल कितना दिया हुआ है? एट द सिग्निफिकेंस लेवल ईच ऑफ द रीजन लेफ्ट टू द डॉटेड लाइन कर। देखो अब यहाँ पर देखो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है 0.05। एंड ये जो मेरा टेस्ट है ये 2 टेल टेस्ट है, मुझे एक्सेप्ट करना है उसी रीजन के अंदर। 2 टेल टेस्ट के लिए वैल्यू देखो क्या है, अभी हमने ऊपर देखा एट सिग्निफिकेंस लेवल 5%, देखो 0.05 ना, तो 5% सिग्निफिकेंस लेवल में वैल्यू आ रहा है 1.96। ये देखो 1.96 इज दी वैल्यू। 2 टेल टेस्ट Z का क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ Z, वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ Z नाउ। अब 2 टेल टेस्ट है, दिस इज द 2 टेल्ड टेस्ट। ये 2 टेल्ड क्यों है? क्योंकि हमको दोनों तरफ से देखना है, 80,000 से ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो, दोनों को हमको देखना है। तो नाउ सो दैट फॉर सिग्निफिकेंस लेवल ईच ऑफ द रीजन लेफ्ट टू द, अब देखिए हम लोग दिखा है, देखो ये 2 टेल टेस्ट का वैल्यू, मेरा Z का वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू जो निकला है
इसको मैं अभी डायग्राम करके दिखाऊंगी तो और अच्छे समझ में आएगा. नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू 1.96. ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से ये वैल्यू निकला है. इस पर हमको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है. ठीक है. अब मेरा जो वैल्यू निकला, वैल्यू ऑफ z, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमको अपना जो कर्व बनाना ना, कर्व का मैक्सिमम अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालना है. बस हमको और ज़्यादा कुछ नहीं करना है. मेरा अपर लिमिट क्या होगा, मेरा मीन वैल्यू कितना है, अपर लिमिट वुड बी H0 दैट इज नल हाइपोथेसिस जो है, प्लस मेरा वैल्यू कितना निकला z 1.96, क्रिटिकल वैल्यू इज 1.96 मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, ये वैल्यू है. ये मेरा अपर लिमिट निकलेगा और लोअर लिमिट निकलेगा UH0 माइनस 1.96 स्टैंडर्ड डिविएशन x बार. दिस इज मल्टीप्लिकेशन. हाँ देखो, इसको मैं करके दिखा देती हूँ वैल्यू कितनी आ रही है. मेरा अपर लिमिट जो आ रहा है, मैं UL लिख रही हूँ, अपर लिमिट इज इक्वल्स टू 80,000 प्लस 1.96. 1.96 तो मेरा जो क्रिटिकल वैल्यू है वही है, मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल इज 400. दिस इज कमिंग टू 80,784 kgs. This is my upper limit, and my lower limit is equals to 80,000 minus 1.96 multiplied by 400. ठीक है. It is coming to 79,216 kgs. ये आ रहा है. अभी जो अपर मतलब जो लेवल निकाला हमने, अपर लिमिट या लोअर लिमिट जो हमने निकाली, इसका मेन इंटेंशन क्या है, हम लोग को इसको रिप्रेजेंट करना है इन अ डायग्राम. जो मैं इसको अच्छे से समझने के लिए, देखो मैं ये टू टेल्ड टेस्ट का एक डायग्राम दिखा रही हूँ किस तरीके का होता है. हम लोग को सारी वैल्यू यहाँ पे पता है ना. सपोज दिस इज द कर्व, ये कर्व है हमारा. अब देखो मेरा ये इन बिटवीन एकदम बीच में है. मीन वैल्यू दैट इज मेरा जो मीन ऑफ या जो नल हाइपोथेसिस है, मीन वैल्यू जिसको हम बोल रहे हैं, दिस इज 80,000. ये स्टैंडर्ड है. 80,000 मेरा स्टैंडर्ड है. ठीक है. अब मेरा अपर लिमिट कितना आया है, मैंने अभी कैलकुलेट करके देखा. अपर लिमिट कैसे आया, मेरा वैल्यू जो है, एक तो सिग्निफिकेंस लेवल है 0.05. 0.05 जो सिग्निफिकेंस लेवल है, उसका जो दो एरिया 0.025, उसको डिवाइड किया गया इनटू प्लस 0.025 एंड माइनस 0.025. ये मेरा सिग्निफिकेंस लेवल है. जो 5% था ना सिग्निफिकेंस लेवल, उसको यहाँ पे डिवाइड किया गया है. 5% को डिवाइड किया गया, प्लस में 0.025 और माइनस में 0.025. सेम वे में हमारा जो ये 1.96 है, जो क्रिटिकल वैल्यू है, उस क्रिटिकल वैल्यू को अगर मैं यहाँ दिखाऊँ, यहाँ है प्लस 1.96 और ये रेंज में माइनस 1.96. ठीक है. दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x और ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x. ठीक है. अब इस एरिया को, जो प्लस माइनस है, इस एरिया को यहाँ पे बांटा गया है. ये जो एरिया को बनाया गया है 0.475 ऑफ द एरिया एंड 0.475 ऑफ द एरिया. मतलब 0.475 प्लस 0.475 करोगे तो टोटल आएगा 1.96. 1.96 को प्लस की तरफ में आधा, माइनस की तरफ में आधा रखा गया. अब देखो यहाँ पर जो आ रहा है, देखो हमारा जो वैल्यू आया, मीन वैल्यू मेरा है 80, मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू है 80,000. अपर लिमिट जो हमारा आया वो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, दैट इज 80,784. ठीक है. और ये वैल्यू जो हमारी आ रही है 79,216.
260 इस क्रिटिकल वैल्यू का, ये जो रेंज है, इसके नीचे जाने से हम नहीं ले सकते, इसके ऊपर जाने से हम नहीं ले सकते, क्योंकि अभी अगर ये हाइपोथेसिस को लेकर हमको चलना है तो हम जो डिसीजन लेंगे, तो मेरा मीन वैल्यू इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए और इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसको टू टेल्ड टेस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि हम आगे और पीछे दोनों तरफ से इसको टेस्ट कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? क्लियर है? तो यहाँ पर तो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में था कि जो सैंपल है मेरा 79,600 kgs का मीन शो कर रहा है, तो 79,600 जो है, कितना है 79,600, हाँ, kgs फॉल विद इन द एक्सेप्टेंस रीजन। ये मेरा 79,600 जो है वो इस रेंज के अंदर ही आ रहा है, ठीक है ना, रेंज के अंदर ही आ रहा है ना। तो पढ़ना कितना दूर समझ में आया? मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। एक्चुअली ये थोड़ा सा तो, एक्चुअली तुम पहली बार अगर कर रही हो तो थोड़ा सा टफ होगा, इसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। ठीक है, बट ट्राई करोगी तो हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। बिकॉज स्टैटिस्टिक्स जानना ज़रूरी है। जब आप एनालिस्ट में एनालिसिस का काम करोगे तो स्टैटिस्टिक्स तो जानना चाहिए आपको। जी बिल्कुल। चलो, मैं इसको गो थ्रू करके खुद ट्राई करूंगी करने के लिए, मतलब एक बार। नहीं नहीं, वो तो होगा ही। देखो, एक चीज हम बोल रहे हैं, एक और कहाँ गया, अच्छा, एक और सम्स है, उस सम्स में हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में देखो जो क्वेश्चन है, अ सिनेमा हॉल हैज कोल्ड ड्रिंक, बोलो ক্লাস দিয়েছে কলেজে 11 10 থেকে ताड़ाताड़ी। হ্যাঁ ওটা যা পারে তাই বলছে এক্ষুনি বলবে। अच्छा, एक